اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین فتحصل ان الترجیح انما هو بإیجاب العلة وجود المعلول بحيث يتعين له الوجود ويستحيل عليه العدم او ایجابها عدمه فالشیء اعنی الممکن ما لم یجب لم یوجد۔ بس کہتے ہیں کہ جب اولویت باطل ہے اپنے تمام اقسام کے ساتھ تو نتیجہ یہ نکلتا ہے علیکم السلام تو نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ترجیح سبب نہیں بن سکتی تحقق کا، اولویت جو ہے وہ تحقق کا سبب نہیں بن سکتی۔ تحقق اس وقت ہی ہو سکتا ہے کہ جب علت معلول کو وجوب عطا کرے، یعنی اس کا وجوب کے مرحلے پر پہنچے اور تحقق پیدا کر جائے۔ اس عبارت کو دیکھیں پھر آگے مطلب جو ہے اس کو تبیین کرتے ہیں۔ فتحصل پس خلاصہ یہ ہوا، نتیجہ یہ نکلا کہ ان الترجیح انما ہوا بإیجاب العلت وجود المعلول، کہ ترجیح جو ہے، ترجیح کیا ہے؟ یعنی تساوی کی حالت سے خارج ہونا۔ یہ کیا ہو جائے گا؟ ترجیح ہو جائے گا۔ یہ تساوی کی حالت سے خارج ہونا، یہ جو ترجیح ہے یہ کب ہوگا؟ یہ تب ہوگا کہ جب علت معلول کے وجود کو ایجاب کرے، یعنی وجوب عطا کرے، وجوب کے مرحلے تک پہنچائے۔ بحیث اس طریقے سے کہ یتعین لہ الوجود، وجود اس کے لیے متعین ہو جائے، وَيَسْتَحِيلُ عَلَيْهِ الْعَدَمُ اور عدم اس پر محال ہو جائے۔ جب تک اس کیفیت میں نہیں آئے گی کوئی شے تو اس وقت تک وہ تحقق پیدا نہیں کر سکتی۔ یا مثلا یہ تو تھا اس کا وجود کے بارے میں، اب دوسری حالت بھی بیان کرتے ہیں۔ او ایجابہا عدمہ، ایجابہا کی ضمیر علت کی طرف اور عدمہ یعنی معلول، کہ علت ایجاب کرے کس کو؟ معلول کے عدم کو۔ اوپر کیا تھا؟ وجود، نیچے کیا ہے؟ عدم۔ یعنی جب تک علت وجود معلول کے عدم کو ایجاب نہیں کرے گی وہ معدوم بھی نہیں ہوگی۔ اور یہ ذہن کے اندر رکھیں کہ عدم کی حالت میں جب ہم یہ بات کرتے ہیں کہ عدم کو دے، عدم کی طرف تمایل پیدا کرے، یہ تحلیل عقلی کے اندر ہے۔ وَإِلَّا ایسا نہیں، یہ حتماً ذہن میں رکھیں، بار بار عرض کرتا ہوں کیونکہ یہ دیکھا گیا ہے کہ عرفی ذہن کے ساتھ اگر فلسفے کو سمجھیں گے تو ایک تو فلسفہ سمجھ میں نہیں آئے گا، اور دوسرا یعنی بہت ساری جو بد اعتقادیاں پیدا ہوتی ہیں وہ بھی اسی سوء فہم کی وجہ سے پیدا ہوتی ہیں۔ لہٰذا یہ جو کہا جا رہا ہے کہ شے علت جب تک معلول کو عدم نہیں دے گی اس وقت تک وہ معدوم نہیں ہوگا۔ خارج میں ایسا نہیں ہے کہ شے ایک جگہ پہ پڑی ہوئی ہے، مثلا اس کو اگر وجود دے گی، ایجاب کے مرحلے پر لے جائے گی، وہ تحقق پیدا کر لے گی، اور اگر جو ہے وہ ماہیت اس کو اگر عدم نہ دیا گیا تو وہ معدوم نہیں ہوگی، عدم دیں گے تو وہ معدوم ہوگی۔ ایسا نہیں ہے، شے یا خارج میں یا فقط موجود ہے یا معدوم ہے، تیسری حالت اصلاً متصور ہی نہیں ہے۔ یہ ہم بیٹھ کر اب کیا کر رہے ہیں؟ کیفیت کی تحلیل کر رہے ہیں، اپنے آپ کو سمجھا رہے ہیں۔ جیسا کہ عرض کیا کہ بعض مطالب جو عقلی ہوتے ہیں ان کو ڈائریکٹ انسان نہیں سمجھ پاتا اور نہ ہی سمجھا سکتا ہے اس کو، چونکہ عقل انسان کی آمادہ نہیں ہوتی۔ ہاں، جس بندے نے پریکٹس کی ہے، اپنی عقل کو تجرد کی طرف جو ہے وہ لے آیا ہے، وہ انسان جو ہے وہ
खुद मतालिब अक्ली को बेदून मिसाल, बेदून तमसील, बेदून मसलन तसामुह जो है वो समझने की काबिलियत रखता है। लेकिन मुझ जैसे अफराद, मसलन आप इब्तिदाई तुल्लाब हैं, ये जब तक तमसील ना दी जाए, जब तक आप तुल्लाब के सामने जो है वो दिखाया ना जाए मतलब बनाकर, उस वक्त तक वो मतलब समझ में नहीं आता। बस ये हतमन ज़हन में रखें कि जब तमसील दी जाती है तो मतलब को करीब करने के लिए दी जाती है। इससे ये नतीजा नहीं लेना कि हतमन इसी तरह ही है। मसला आप कोई बंदा आकर कहेगा कि मसलन अगर आप कहते हैं कि अगर इल्लत वजूद दे तो मौजूद होगा, और अगर इल्लत अदम देगा तो मादूम होगा, इसका मतलब यह है कि वो शय अपनी ज़ात में ना मौजूद है ना मादूम, तो ये इज्तिमाई नक़ीज़ैन हो जाएगा या इर्तिफ़ाई नक़ीज़ैन हो जाएगा। और मंतिक के अंदर पढ़कर आए हैं कि इर्तिफ़ाई नक़ीज़ैन भी मुहाल है और इज्तिमाई नक़ीज़ैन भी मुहाल है। जवाब उसका यह है कि हम खारिज की चीज को नहीं कह, खारिज को देखते हुए नहीं कह रहे हैं कि खारिज में ऐसा है, बल्कि हम आप में ये अशिया इस वक्त मौजूद हो चुकी हैं, हम फकत तहलील कर रहे हैं कि ये कैसे वजूद में आई है। दुरुस्त है, खुदा ने जैसे भी खल्क किया उससे हमें सरोकार नहीं है, लेकिन आया खुदा ने जब इन अशिया को खल्क किया तो आया फकत तरजीह की हालत में खल्क किया या ईजाब की सूरत में इनको खल्क किया है। इस मतलब को समझने के लिए हमें थोड़ी तमसीलों का सहारा लेना पड़ रहा है। वो मैंने खत जो बनाया था वो मिसाल आपको दी है। या ये जो अदम की बात करें, मसलन कहते हैं कि इल्लत ईजाब करे मालूल के अदम को, इसका मतलब ये नहीं है कि अगर अदम नहीं देगी इल्लत तो वो मादूम नहीं होगा, वो चीज मादूम नहीं होगी ना। अगर वजूद नहीं है मादूम है, दूसरी सूरत नहीं है कोई। फकत हम ये तहलील कर रहे हैं कि मादूम होने में क्या सूरत हाल, क्या कैफियत होती है, और वजूद होने में क्या कैफियत होती है। इस कैफियत को तहलील करके हम समझ रहे हैं। व ईजाबहा अदमहू, और इल्लत वजूब अता करे, कौन सा वजूब? वजूब अदम, यानी जरूरत अदम अता करे उसको। फशयओ आनी अल मुमकिन, यानी शय यानी मुमकिन, मा लम यजिब लम यूजद। बस नतीजा ये निकला कि जब तक एक चीज वजूब के मरहले पर नहीं आएगी वो मुतहक्किक नहीं हो सकती। ये था कायदा, मतलब हमारा खत्म हो गया। अब एक नतीजा और इससे लेते हैं, आसान मतलब है, फकत थोड़ी सी दिक्कत करें इसके अंदर आकर। यह भी बहस मंतिक के साथ मरबूत है, वही जिहाद की जो बहसें आपने पढ़ी हैं उनके साथ मरबूत हैं। आप मंतिक मुजफ्फर में देखें। अब एक तहलील जो अल्लामा यहां पर फरमाते हैं वो ये कि एक शय मसलन अगर हो, जैसे हम कह रहे हैं कि मुमकिन, ये दो वजूब के हिसार में है, दो वजूब के हिसार में है, यानी दो वजूब ने आगे और पीछे से इसको घेरा हुआ है। जो मुमकिन वजूद पैदा कर जाता है उसके आगे और पीछे क्या होते हैं? दो वजूब होते हैं। पहला वजूब अभी हमने पढ़ा है कि इल्लत जब तक इस मुमकिन को वजूब अता न करे उस वक्त तक मुमकिन मुतहक्किक ही नहीं हो सकता। इसको कहते हैं वजूब साबिक। इस्तिलाह याद रखें, फलसफे में यह बहुत ज्यादा इस्तेमाल होती है। वजूब साबिक, साबिक किससे? मालूल से। साबिक यानी पहले होना, दुरुस्त है। वजूब साबिक यानी जो जात मालूल, जात मुमकिन से पहले हो। बस जब तक ये नहीं आएगा मुमकिन खारिज में नहीं आ सकता। बस मुमकिन से पहले वजूब का होना जरूरी है ताकि वो मुतहक्किक हो जाए। बस वजूब जो है ये वजूब साबिक कहलाएगा। एक वजूब जो यहां पर बाद में है, मुमकिन के तहक्कुक के बाद में है जो वजूब, इसको कहते हैं वजूब लाहिक। ये वजूब कौन सा है? मसलन जब ये मौजूद हो गया, आप क्या कह सकते हैं? अल मुमकिनो
मौजूदुन बिज़रूरा, कहते हैं नहीं कहते? मुमकिन मौजूद है हतमन, जरूरतन, बिज़रूरा, जो भी ताबीर आप इस्तेमाल कर लें, लेकिन ये जरूरत कब साबित है? मा दामा मौजूदन, ये कैद लगाएंगे। जब ये कैद आ जाएगी तो ये जरूरत आएगी दरमियान में। व इल्ला अल मुमकिनु मौजूदुन बिज़रूरा, ये कैद ना लगाएं तो ये जिहत गलत है, क्योंकि मुमकिन बिज़रूरा मौजूद नहीं है, यानी मुमकिन का होना हतमी है नहीं, बल्कि खुदा का होना हतमी है। हम अल्लाह मौजूदुन बिज़रूरा कह सकते हैं, लेकिन अल मुमकिन मौजूदुन बिज़रूरा नहीं है। मुमकिन की जात में ना वजूद है ना अदम, चाहे तो मौजूद हो जाए चाहे तो अदम हो जाए, वो भी इल्लत ने फैसला करना है कि मैंने इसको वजूद देना है या अदम देना है इसको। लेकिन ये जरूरत कब आती है? कि जब मादामा मौजूदन कहा जाए, यानी मुमकिन मौजूद है हतमन जब तक वो मौजूद है, यानी जब तक वो मौजूद है बिज़रूरा मौजूद है। इसको कहते हैं जरूरत बिशर्तिल महमूल। ये मंतिक मुजफ्फर की तरफ आप रजू करेंगे, उसके अंदर ये मताले मौजूद हैं। यानी मंतिक वाक़अन अगर किसी ने अच्छे तरीके से हल की हो, बहुत सारे, यानी आप यूं समझेंगे 40% मताले फलसफे के वो इंसान पहले से पढ़ा हुआ है, अगर मंतिक इंसान ने सही तरीके से पढ़ी हुई हो। जरूरत बेशर्तिल महमूल है। जरूरत बेशर्तिल महमूल किसे कहते हैं? यानी ऐसी जरूरत के जो महमूल के साथ मशरूत है। मसलन हम हर चीज के बारे में ये कह सकते हैं, अगर मैं लिख रहा हूं तो मेरे बारे में कहा जा सकता है कि मसलन क्या है, ज़ैद कातिबुन बिज़रूरा, कब? मादामा कातिबा, जब तक मैं लिख रहा हूं ये किताबत बिज़रूरा मौजूद है। ऐसा नहीं हो सकता कि मैं लिख रहा हूं और कह सकते हैं कि यह कातिब नहीं है, मुमकिन है कातिब हो। नहीं भाई, मैं लिख रहा हूं इस वक्त, मैं हतमन कातिब हूं जब मैं लिख रहा हूं। बस अगर आप इस महमूल को शर्त लगा दें, महमूल की शर्त लगा दें यहां पर, तो जरूरत आ जाती है। इसको कहते हैं जरूरत बिशर्तिल महमूल। हर चीज को ऐसे मतलब अगर इंसान चल रहा है तो उस वक्त हम कहेंगे अल इंसान मुतहर्रिकुन बिज़रूरा, कब? मादामा मुतहर्रिका, जब तक वो चल रहा है, हरकत इसके लिए हतमी है और साबित है इसके लिए। तो ये जरूरत कौन सी है? बिशर्तिल महमूल। इस जरूरत बिशर्तिल महमूल को वजूब लाहिक कहते हैं। बस अगर आपसे पूछ लिया जाए कि वजूब लाहिक किसे कहते हैं, तो उसकी तबयीन यह है। वजूब लाहिक किसे कहेंगे? वजूब लाहिक जरूरत बिशर्तिल महमूल को कहते हैं। खूब, जरूरत बिशर्तिल महमूल किसे कहते हैं? यानी जब महमूल को मशरूत, यानी महमूल की शर्त लगा दी जाए, या इस तरीके से आप बयान कर सकते हैं कि हम कज़िये में जो महमूल रखते हैं उसको बेउनवाने शर्त जो है वो लेकर आ जाएं, उसको कहेंगे कि जरूरत बिशर्तिल महमूल। और मिसालें मुख्तलिफ दे दी हैं, आसान सी मिसालें ज़हन में बैठ सकती हैं, कोई भी मिसाल आप दे सकते हैं, लेकिन कब? कि जब महमूल साबित हो उसके लिए। अब मैं इस वक्त लिख नहीं रहा, इस वक्त मेरे बारे में नहीं कहा जा सकता कि ज़ैद जो है वो कातिब है बिज़रूरा, मैं तो लिख ही नहीं रहा। मेरे लिए किताबत इम्कान है, इम्कान रखती है, मैं चाहूं तो लिख सकता हूं, चाहूं तो ना लिखूं, बस मुमकिन है मेरे लिए। लेकिन जब मैं लिखना शुरू कर दूंगा उस वक्त मेरे लिए किताबत बिज़रूरा साबित है। लेकिन कौन सी जरूरत?
ज़रूरत बशर्तिल महमूल, चूंकि ज़रूरत की कई किस्में हैं कि बाज़ की तरफ जो है अभी बाद वाली फसल में इशारा करूंगा उसमें, बस एक ज़रूरत क्या है, ज़रूरत बशर्तिल महमूल है, इसको कहते हैं वजूबे लाहिक। तो फरमाते हैं कि मुमकिन जब मुतहक्किक हो जाता है तो एक तो वजूब उसका साबिक होता है कि जो उसको इल्लत अता करती है, और एक वजूब लाहिक होता है जो कि ज़रूरत बशर्तिल महमूल है। देखें, हाँ ना, वजूब बिल गैर वो है, साबिक है, वो गैर ने अता किया। वजूब वजूब लाहिक जो है वो क्या है, बशर्तिल महमूल कहलाएगा। यानी समझ, ये इस्तिलाहें जो मंतिक के अंदर उस तरीके से समझ में आएगी। अगरचे ये जाती नहीं है उसका, हम उसमें बहस नहीं कर रहे कि जाती है या नहीं है, हम कह रहे हैं कि ये वजूब उस वक्त इसके लिए साबित होगा कि जब वो हालत काम में हो, मसलन चल रहा हो तब कहेंगे बिज जरूरा, लिख रहा हो तो तब कहेंगे बिज जरूरा, मसलन मुताला कर रहा होगा तब कहेंगे बिज जरूरा, मसलन ये इस सूरत में ये साबित करेंगे उसको। देखिए, मा तक़द्दम मिनल वजूब हुवल्लज़ी यअतिल मुमकिना मिन नाहियति इल्लति। कहते हैं अभी तक जो हमने वजूब की बात की है ये वो वजूब है कि जो मुमकिन को इल्लत की तरफ से मिलता है। दुरुस्त है, वाला ये तो हो गया वजूब साबिक। दुरुस्त है, अब अगला मतलब बयान कर रहे हैं, वलहु वजूबुन आखर, इसके अलावा भी एक वजूब है। क्या है वो, यलहकुहु बअद तहक्कुकिल वजूद अविल अदम, कि जब ये वजूब कब मुल्हक होता है मुमकिन को, कि जब वो तहक्कुक पैदा कर जाए या क्या है, अदम हो जाए, उस वक्त ये क्या है, उस वक्त ये क्या है, जरूरत पैदा कर जाता है और वजूब होता है। इसको क्या कहते हैं, वहुवल मुसम्मा बिज़्ज़रूरा बिशर्तिल महमूल। मिसालें मैंने आपकी खिदमत में अर्ज कर दी हैं, किताब में नहीं है, ये आपने हतमन जो है वो ज़हन में रखना है कि इसकी मिसालें क्या हैं और इसको कैसे बयान करना है। फल मुमकिनुल मौजूदो महफूफुन बिज़्ज़रूरतैन, बस मुमकिन जो कि मौजूद हो चुका है ये दो वजूब और दो जरूरतों के घेरे में है, अस्साबिक़त वल्लाहिक़ा, एक जरूरत साबिक है, वजूब साबिक है जो कि इल्लत उसको अता करता है, और एक जरूरत व वजूब है कि जो तहक्कुक के बाद उससे मुत्तसिफ होता है वो क्या है, बिशर्तिल महमूल है। यानी जैसे महमूल अगर जब तक महमूल साबित है मौजू के लिए उस वक्त तक वो महमूल बिज़्ज़रूरा है। ये था मतलब हमारा 5वीं फसल के बारे में। इसके बाद जो है वो 6ठी फसल शुरू हो जाती है। ये भी इंतहाई अहम फसल है। इस्तिलाहात हैं कि फलसफे के अंदर ये इस्तिलाहात बहुत ज्यादा इस्तेमाल होती हैं। इनमें से बाज़ चीजें आप पहले पढ़ चुके हैं, बाज़ चीजें आप मंतिक में देख चुके हैं, लेकिन उसकी दोहराई की जरूरत है, और बाज़ चीजें इसमें नहीं आएंगी कि उसको साथ साथ बयान करेंगे। फरमाते हैं कि इम्कान का लफ्ज फलसफे में बहुत ज्यादा इस्तेमाल तो होता है, लेकिन इस लफ्ज इम्कान के मुख्तलिफ मानी है, ये एक माना में नहीं है, ये एक माना में नहीं है, बल्कि इसके मानी मुख्तलिफ हैं। आप यूं कह लें कि ये मुश्तरक लफ्जी है इम्कान जो है। कितनी कि मैं पहले नाम उसके लेता हूं, फिर साथ साथ उसकी तारीफें करते रहते हैं। इम्कान के मुख्तलिफ मानी हैं। इम्कान या इम्कान खास होता है, या इम्कान आम होता है, या इम्कान अखस होता है, या इम्कान जो है वो इम्कान अखस है, इम्कान इस्तिकबाली है, और इम्कान इस्तिअदादी है, इम्कान वक़ूई भी है। ये मुख्तलिफ मानी हैं कि जो आपने पढ़ने हैं इस फसल के अंदर। इम्कान खास क्या है, ये जब से हमने फलसफा शुरू किया इसी से सरोकार है। पिछले दर्स में मैंने तज़क्कुर दिया था कि इम्कान खास क्या है। इम्कान खास यानी सल्बुज़ ज़रूरतैन, यानी ऐसी शय कि जो न तो जरूरत वजूद रखती हो और ना ही जरूरत है अदम।
सल्ब ज़रूरतैन है, दोनों तरफ से जरूरत सल्ब है, यानी ना तो वजूद उसके लिए जरूरी है और ना ही अदम उसके लिए जरूरी है। जब दो जरूरतें सल्ब हो जाएं तो उसको कहते हैं इम्कान खास। इस वक्त पूरी कायनात इम्कान खास रखती है, क्योंकि कायनात का कोई भी जर्रा ना उसके लिए वजूद जरूरी है, अगर वजूद जरूरी होता तो वाजिबुल वजूद होता, और ना ही उसके लिए अदम जरूरी है, अगर अदम जरूरी होता तो वो मुमतने उल वजूद होता। जिस तरीके से इज्तिमा नकीज़ैन खारिज में नहीं आ सकते तो वो भी खारिज में ना आ सकता। दुरुस्त है। बस जो भी चीज कायनात में मौजूद है या आइंदा मौजूद होगी, वो सब के सब क्या रखते हैं? इम्कान खास, क्योंकि उनके अंदर जो है वो सल्ब जरूरतैन है। बस इम्कान खास में दो जरूरतें जो है वो सल्ब की जाती हैं, सल्ब जरूरतैन। ये अब आगे लिख दें, जरूरतैन से क्या मुराद है? जरूरतुल वजूद व जरूरतुल अदम। इम्कान आम क्या है? इसमें क्या होता है? सल्ब जरूरा है, कहां से? तरफ मुखालिफ से, तरफ मुखालिफ से। तरफ मुखालिफ और मुवाफिक किसे कहते हैं? यानी कज़िये का जो मुहतवा है वो तरफ मुवाफिक है, और उसका जो मुकाबिल बनेगा वो क्या, उसकी नकीज क्या है? तरफ मुखालिफ हो जाएगी। मसलन अगर मैं कहता हूं कि अल्लाह मौजूदुन, तो ये क्या है? ये कज़िया तरफ मुवाफिक कहलाएगा, यानी तरफ मुवाफिक। और मादूम होना ये क्या हो जाएगा? तरफ मुखालिफ। तरफ मुखालिफ है, मुकाबिल भी दे लें, मुखालिफ दे लें, जो भी दे लें उसको। अब इम्कान आम में हम फकत एक जरूरत को सल्ब करेंगे, वो कौन सी होगी? मुखालिफ वाली। आपने फकत अपना कज़िया देखना है, कज़िये में क्या चीज आई हुई है। कज़िये में अगर वजूद है तो तरफ मुखालिफ अदम बनेगी। तो आप क्या कर रहे हैं? अल्लाह मौजूदुन बिल इम्कान कहेंगे तो इससे मुराद ये है कि अदम जो है खुदा के लिए जरूरी नहीं है। दुरुस्त है। या मसलन अगर आप कहेंगे कि अल इंसानो मौजूदुन, इसका माना क्या है? कि अदम जो है इंसान के लिए जरूरी नहीं है। इसका तर्जमा ये करेंगे हम, इसका तर्जमा ये नहीं करेंगे कि इंसान मौजूद है, बल्कि क्या कहेंगे? अगर हम इम्कान आम में बात कर रहे होंगे, अल इंसान मौजूदुन बिल इम्कानिल आम, जब इस मौरिद में होंगे तो इस कज़िये के क्या तर्जमा करेंगे? कि इंसान के लिए अदम जरूरी नहीं है। यानी क्यों जरूरी नहीं है? क्योंकि अगर अदम जरूरी होता तो यह मुमतने उल वजूद होता, ना कि मौजूद। दुरुस्त है। तो ये तरफ मुआफिक हो गया कि इंसान मौजूद है, तरफ मुखालिफ मादूम है। हमने जब कहा कि अल इंसान मौजूदुन बिल इम्कानिल आम, तो इसका मतलब यह है कि हम मादूम यानी अदम से जरूरत को सल्ब कर रहे हैं, सल्ब जरूरतिल अदम कर रहे हैं कि अदम इसके लिए जरूरी नहीं है, अदम इसके लिए वाजिब नहीं है। अब यह बात आ जाती है, मंतिक में आपने पढ़ा है कि तरफ मुवाफिक में फिर आया जब मैंने कह दिया कि वो मादूम अदम उसके लिए जरूरी नहीं है, तो मुवाफिक में दो चीजें बच जाती हैं। एक बचता है इम्कान खास और एक बचता है वजूब जरूरतुल वजूद। यही है ना, क्योंकि मवाद सलास के बारे में हमने क्या कहा है? हर शय जो है वो तीन मवाद से खारिज नहीं हो सकती, या शय वाजिबुल वजूद होगी, या शय मुमकिन उल वजूद होगी, या क्या है? मुमतन उल वजूद होगी। दुरुस्त है। अगर हमारा कज़िया वजूद वाला है, यानी अल इंसान मौजूदुन, और हम बिल इम्कानिल आम की बात कर रहे हों, हम कहें कि अल इंसानो मौजूदुन बिल इम्कानिल आम, तो इसका तर्जमा क्या है? कि इंसान के लिए अदम जरूरी नहीं है, बस मुमतने होना तो खारिज हो गया।
दुरुस्त है। पीछे कितनी चीजें बचती हैं? दो चीजें बचती हैं, उसका वाजिबुल वजूद होना और उसका मुमकिनुल वजूद होना। तो फरमाते हैं कि इम्कान आम की सूरत में तरफ मुवाफिक में कजिया साकित है। ये कजिया ये जवाब नहीं देगा आपको कि अल इंसान मौजूदुन ये महमूल मेरे लिए जरूरी है या नहीं। कजिया ये नहीं बताएगा। कजिया फकत ये बताएगा आकर इम्कान आम के अंदर कि मुकाबिल वाला मेरे लिए जरूरी नहीं है। इसीलिए कहा कि इस कजिए का तर्जमा आप यूं करेंगे इम्कान आम में, अल इंसान मौजूदुन बिल इम्कान आम, यानी इंसान के लिए अदम जरूरी नहीं है। आया वजूद उसके लिए जरूरी है या जरूरी नहीं है? खामोश है। उसका वो कहता है कि मेरे लिए साहब कहीं और से पूछो, इसका जवाब मेरे पास नहीं है। इस वजह से ये आम है। क्यों? अल इंसान मौजूद उनको अगर देखें तो यहां पर क्या है? वजूद इंसान के लिए जरूरी नहीं है। लेकिन अल्लाह मौजूद उनमें देखें तो यहां पर वजूद जरूरी है उसके लिए। बस मुमकिन है कि बाज औकात इम्कान खास हो मुवाफिक में, और बाज औकात मुमकिन है वाजिब हो इम्कान आम के अंदर और मुवाफिक वाली सूरत में। बात समझ आ गई है? इम्कान आम क्या है? इसी तरीके से आप अदम को कर सकते हैं। अदम को मसलन कजिया बना दें अदम का, और यही नतीजा निकलेगा कि वजूद उसके लिए जरूरी नहीं है, मादूम है। मसलन आपके औलाद में से एक बच्चा जिसने आना है वो मादूम है, हो क्या है उसके लिए आप क्या कर रहे हैं? आपका मसलन नाम रख लें उसका, मसलन जैद मादूम है, चूंकि अभी तक मुतवल्लिद नहीं हुआ, जैद मादूम है। जब आपने ये कहा तो इसका मुखालिफ क्या होगा? वजूद। मुखालिफ वजूद है तो इसका मतलब ये तर्जमा आप क्या करेंगे इसका? जैद मादूम है बिल इम्कान आम, यानी जैद के लिए वजूद जरूरी नहीं है। क्योंकि जैद के लिए अगर वजूद जरूरी होता तो इस वक्त मौजूद होना चाहिए था उसको। बता दे, बस वजूद उसके लिए जरूरी नहीं है। अब अदम उसके लिए जरूरी है या नहीं है? इसके लिए कजिया साकित है। और हम अगर जैद की जात को देखें तो अदम भी उसके लिए जरूरी नहीं है। ये इम्कान खास का मोरिद है, ये एक अलग बहस है। हमने फकत इम्कान आम को जो है वो समझना था। इम्कान आम में क्या है? सल्ब जरूरत करना है तरफ मुखालिफ से, अब वो चाहे वजूद हो या अदम। ये हो गया इम्कान आम। बात वाज़ेह हो गई इसकी। अभी है इम्कान अखस। अब ये थोड़ी सी फिर मंतकी बहस आएगी। इम्कान अखस में तीन किस्म की जरूरतों को सल्ब किया जाता है। कौन कौन सी? जरूरत जाती, जरूरत जाती, जरूरत वस्फी और जरूरत वक्ती। इन तीनों को जो है वो सल्ब किया जाता है बिलमाअनल अखस के अंदर। जरूरत जाती क्या है, जरूरत वस्फी क्या है और जरूरत वक्ती क्या है, इसको समझें तो इम्कान अखस जो है वो समझ में आ जाएगा। जरूरत जाती क्या है? जरूरत जाती आसान सी बात है कि ऐसी जरूरत के जो इक्तिजा किसका हो? जात का हो, यानी वाजिबुल वजूद होना। यह हो गया जरूरत जात। दुरुस्त है? एक मर्तबा मसलन इसको यह भी कहते हैं कि, या इस तरीके से भी जरूरत जाती को जो है वो बयान करते हैं, इस तरीके से बयान करते हैं। मतलब आप कहते हैं अल इंसानो हयावानुन नातिक बिज़रूरा मा दामा हुआ इंसानुन, मादामा हुआ इंसानुन, यानी जात इंसान जब तक है हैवान नातिक होना बिज़रूरा उसके लिए साबित है। जात का होना जरूरी है। यह हो जाएगी क्या? जरूरत जाती। दुरुस्त है? जहां पर आप जात की कैद आकर लगा देते हैं। जरूरत वस्फी क्या है? अभी जो मैंने तबयीन किया है आकर, आप वस्फ की जो है वो कैद लगा देते हैं।
दुरुस्त है। आप कहते हैं कि अल इंसानो कातिबुन मादामा बिज़रूरा मादामा हुआ कातिब। जब तक किताबत की सिफत उसके लिए साबित है उस वक्त तक वो क्या है? कातिब है। इसको कहेंगे जरूरत है वस्फी, यानी वस्फ जब तक है वो महमूल उसके लिए जो है बिज़रूरा साबित है। मुतहर्रिकुल असाबे, बिल्कुल मादामा कातिबा, मुतहर्रिकुल असाबे है इंसान बिज़रूरा, कब? कि जब इंसान क्या है? कातिब है। किताबत की हालत और किताबत का वस्फ जब तक साबित है इंसान के लिए उस वक्त तक जो है उसके मुतहर्रिकुल असाबे होना जो है वो क्या है? ये मुतहर्रिकुल असाबे वाली की मिसाल जो है वो दकीकतर है। इससे मुतहर्रिकुल असाबे वाली लिख लें यहां पे, अल इंसानु मुतहर्रिकुल असाबे बिज़रूरा मादामा कातिबा। किताबत की सिफत जब साबित है उसके लिए तो मुतहर्रिकुल असाबे होना जो है उसके लिए जरूरी है। इसको कहते हैं जरूरत वस्फिया। एक और जो जरूरत है वो क्या है? जरूरत वक्तिया है। जरूरत वक्तिया वो क्या है? वो है कि आप क्या करते हैं? कैद लगाते हैं वक्त की। मसलन आप कहते हैं कि चांद ग्रहण जब लगता है, आप कहते हैं चांद ग्रहण लगा है बेजरूरा, कब? कि जब जमीन सूरज और चांद के दरमियान में आ जाए। अब ये जब की जो आप कैद लगा रहे हैं ये वक्त की कैद है, यानी जब तक जमीन सूरज और चांद के दरमियान रहेगी उस वक्त तक सूरज ग्रहण लगना जरूरी है, बेजरूरा उसके लिए साबित है। तो जब वक्त की कैद आ जाती है तो उस वक्त कहते हैं यह जरूरत वक्तिया है। बस तीनों जरूरतें समझ आ गई। जरूरत जाती यानी मादामा जात की कैद हो, जरूरत वस्फी मादामा वस्फ की कैद हो, और जरूरत वक्ती जहां पर मादामा वक्त की कैद हो, वक्त की कैद हो। तीन जरूरतें पाई जाती हैं। कहते हैं इम्कान अखस वो है जिसमें इन तीनों को जो है वो क्या किया जाता है? सल्ब किया जाता है। ऐसा कजिया कि जिसमें ये तीनों जरूरतें सल्ब होती हों उसको इम्कान अखस कहेंगे। दुरुस्त है। इसकी कुछ इबारतें पढ़ लेते हैं, फिर जो बाकी रह गया उसको फिर बाद में देखते हैं। अल फस्ल सादिस फी मआनिल इम्कान, छठी फसल जो है हमारी वो इम्कान के मानी में है। अल इम्कानुल मबहूस अन्हु हाहुना, इम्कान के जिसके बारे में यहां पर या पहले जो है बहस हुई है वो क्या थी? जरूरतुल वजूदे ना, या इबारत क्या आगे पास? हाँ, ला जरूरतुल वजूदे वल अदब बिन्निस्बते इलल माहिया अल मअखूज़त मिन हैसो हिया, कि माहियत की निस्बत अगर देखा जाए, यानी माहियत को माहियत होने के एतबार से देखा जाए तो ये माहियत ना तो जरूरतुल वजूद रखती है और ना ही जरूरतुल अदम रखती है। वहुवल मुसम्मा बिल इम्कानिल खास, इसको इम्कान खास भी कहते हैं, वल खासी, और इम्कान खासी भी कहते हैं। एक और नाम लिख लें, इसको इम्कान जाती भी कहते हैं। ये ताबीर बहुत ज्यादा फलसफे में इस्तेमाल होती है। इस इम्कान खास को इम्कान जाती भी कहते हैं, और इसी इम्कान को इम्कान माहोवी भी कहते हैं। यह भी ताबीर फलसफे में बहुत ज्यादा इस्तेमाल होती है। अगर कोई आपसे पूछे इम्कान जाती की तारीफ क्या करें तो सल्ब जरूरतैन से करनी है। अगर कोई आपसे पूछे कि इम्कान माहोवी किसे कहते हैं, सल्ब जरूरतैन से उसकी तारीफ करें। इम्कान खास किसे कहते हैं, सल्ब जरूरतैन से उसकी तारीफ करें। ये सब एक ही इम्कान के नाम हैं। इम्कान जाती की ताबीर भी इस्तेमाल होती है, इम्कान माहोवी की ताबीर भी इस्तेमाल होती है, और इम्कान खास की ताबीर भी इस्तेमाल होती है।
وقد یستعمل الامکان بمعنى سلب الضرورت عن الجانب المخالف. فرماتے ہیں کہ دوسرا معنی امکان کا یہ ہے کہ امکان استعمال ہوتا ہے سلب الضرورہ میں، ایک ہی ضرورت کو سلب کرنا ہے لیکن وہ ضرورت جانب مخالف سے سلب کرنی ہے، اس معنی میں بھی امکان استعمال ہوتا ہے. سواء کان الجانب الموافق ضروریاً او غیر ضروری. اب موافق کے اندر یعنی خود قضیے کے اندر، محتوائے قضیہ کے اندر محمول جو ہے وہ موضوع کے لیے ضروری ہے یا ضروری نہیں ہے، اس اعتبار سے وہ کیا ہے؟ مسکوت ہے. ہمیں فقط طرف مخالف سے سروکار ہے، موافق میں ہماری بات نہیں ہے. امکان عام کے اندر ایسا ہوتا ہے. فَيُقَالُ الشَّيْءُ الْفُلَانِي مُمْكِنٌ. اگر یوں کہہ دیا جائے تو اس کا معنی یہ ہے کہ اے لیس بممتنع ہے، تو معنی قضیے کا یہ کرے گے کہ وہ شے ممتنع نہیں ہے، یعنی عدم اس کے لیے ضروری نہیں ہے. وَهُوَ الْمُسْتَعْمَلُ فِي لِسَانِ الْعَامَّةِ. عرف عام کی زبان میں یہ معنی جو استعمال ہوتا ہے اعم من الامکان الخاص، یہ امکان خاص سے عام ہے. کیوں عام ہے؟ امکان خاص میں دو ضرورتیں سلب ہونی تھی اور امکان عام میں ایک ضرورت سلب ہو رہی ہے. پس امکان عام جو ہے وہ عام ہے، وسیع ہے، کس کی نسبت؟ امکان خاص کے نسبت. وَلِذَا يُسَمَّى امکانا عامیاً او عاما. اس کو امکان عام بھی کہتے ہیں، امکان عامی بھی کہتے ہیں. کیوں؟ عرف کے اندر یہی معنی جو ہے وہ استعمال ہوتا ہے. اور امکان عام عام بھی ہے، یعنی عامی کہتے ہیں چونکہ عرف میں یہ زیادہ استعمال ہوتا ہے، عام کہتے ہیں چونکہ امکان خاص کی نسبت اس کا دائرہ کیا ہے؟ وسیع ہے. یعنی معمولاً عرف میں جب کہا جاتا ہے مثلا بادل ہوں، بجلی گرج رہی ہو، تمام شرائط ہوں لیکن ابھی بارش نہ ہوئی ہو، اس کو اگر پوچھا جائے کہ بارش ہوگی، وہ کہتا ہے کہ ممکن ہے بارش ہو جائے. اب یہ جو وہ کہہ رہا ہے ممکن ہے بارش ہو جائے، یہ کہنا چاہتا ہے کہ بارش کا نہ ہونا ضروری نہیں ہے، یعنی عدم اس کے لیے ضروری نہیں ہے. اب موافق کیا ہے اس کے بارے میں اس کا کوئی فیصلہ نہیں ہے. یہ دو معنی ہو گئے. وقد يستعمل في معنى اخص من ذلك. امکان عام ان دو سے زیادہ، یا ذالکہ کی تعبیر امکان خاص کی طرف جا رہی ہے. کیوں؟ اس وجہ سے امکان عام تو عام ہے، امکان یہ خاص امکان عام کی نسبت خاص ہے، اور یہ کہتے ہیں کہ یہ تیسرا معنی جو ہے یہ امکان خاص کی نسبت بھی کیا ہے؟ خاص ہے. پس ذالکہ کی آپ یہ جو اشارہ ہے یہ امکان خاص کی طرف پلٹائیں. اخص من ذالک یعنی امکان خاص سے بھی زیادہ اخص ہے. یہ کیا ہے؟ وہاں دو ضرورتیں سلب ہو رہی تھی، یہاں پر تین ضرورتیں سلب ہو رہی ہیں. وَهُوَ سَلْبُ الضَّرُورَاتِ الذَّاتِيَّةِ وَالْوَصْفِيَّةِ وَالْوَقْتِيَّةِ كَقَوْلِنَا الانسان کاتب بالامکان العام. اگر یہ قضیہ بنا دیا جائے کہ انسان کاتب ہے اور امکانی حالت میں کاتب ہے، حیث ان الانسانیت لا تقتضی ضرورت الکتابہ، انسان کی ذات کتابت کو تقاضا نہیں کرتی. مثلا ایسا نہیں ہے کہ انسان اگر انسان ہے تو کتابت بھی ہے اس کے لیے، نہیں. انسان اگر انسان ہے تو ضروری نہیں ہے کہ وہ کاتب بھی ہو. پس ذاتی طور پر کتابت اس کے اندر موجود نہیں ہے. پس ضرورت وصفیہ، ضرورت ذاتیہ سلب ہو گئی. وَلَمْ يُؤْخَذْ فِي الْمَوْضُوعِ وَصْفٌ يُوجِبُ الضَّرُورَةَ. اور موضوع کے اندر کسی وصف کو بھی اخذ نہیں کیا گیا تاکہ اس وصف کے ہوتے ہوئے ضرورت اس کے لیے ثابت ہو جائے. یعنی متحرک الاصاب ما دام کاتبہ کی طرح نہیں ہے. درست ہے؟ وہاں ہم نے وصف کی قید لگا دی تھی آ کر، لیکن یہاں اس طریقے سے نہیں ہے. ولا وقت کذالک، اور وقت کی قید بھی اس کے اندر موجود نہیں ہے. بس تین ضرورتیں یہاں پر سلب ہو جاتی ہیں.
व तहक्कुकुल इम्कान बिहाज़ल मअना फिल क़ज़िया बिहसबिल इअ्तिबारिल अक़ली। इसको थोड़ी वज़ाहत की जरूरत है कि इसको बाद में देखते हैं। व सल्लल्लाहु अला मुहम्मद व आलिहि।